Hello class 3rd, welcome again in my science class. Today we will study the second part of lesson 9, that is water as a resource. In the first part of the chapter, we were studied about the process of evaporation and condensation and how these two processes combined in nature to form the water cycle. In the second part of the video, we will study about the different type of water impurities and we will also study about that what is rainwater harvesting. So let's start. How does water become impure? Impure means ashuddh. The main sources of water on earth is rainwater. It fills rivers, ponds, lakes and wells. This water too is not pure. इट मीन्स बरसात का जो पानी हमारे जमीन पे नदियों तालाबों झरनों या कुओं में आता है वो भी पूरी तरीके से पीने के लायक नहीं होता. Many impurities like dust, particles and harmful gases get mixed with the rainwater. बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और गैसेस जो कि हार्मफुल होते हैं वो इस रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं. In the water bodies, substances like sand, mud and germs get into this water. और ये सारी चीजें वाटर में मिलके वाटर को गंदा करती हैं. The waste from our cities and towns is also dumped into the river. इसके अलावा हमारे शहर में या किसी भी शहर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जनरली रिवर में डंप कर दिया जाता है. इससे भी वाटर इम्प्योर होता है. This makes the rivers very impure. Thus, this water is unfit for drinking and other household activities. इसीलिए ये पानी हमें डायरेक्ट पीने के लिए सुटेबल नहीं होता. So let's study about the water impurities. About 71% of the surface of the earth is covered with water. हमारे अर्थ प्लैनेट का मीन्स हमारी जमीन का 71% एरिया वाटर से कवर है. बट वी आर नॉट एबल टू यूज दिस वाटर डायरेक्टली एज मोस्ट ऑफ इट इज इन द सीज. लेकिन हम इस 71% वाटर का ज्यादातर हिस्सा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सीज में है मीन समुद्रों में है. एंड सी वाटर इज हाईली साल्टी एंड नॉट फिट फॉर अस टू यूज. और समुद्र का पानी खारा होता है जो कि हमारे लिए सुटेबल नहीं होता. द वाटर इन द रिवर लेक्स पॉन्ड्स एंड द ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल टू अस फॉर यूज. और हम जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं वो या तो रिवर का होता है, झरनों का होता है, झील का होता है, पॉन्ड्स का होता है या फिर जमीन के नीचे का होता है. Many times we can use the rainwater. Types of impurities in water. The substances that makes the water impure are called impurities. It means कोई भी सब्सटेंस जो हमारे वाटर को इम्प्योर करते हैं उन सारे सब्सटेंसेस को इम्प्यूरिटीज मीन्स अशुद्धियां कहते हैं. The impurities are of two kinds. अब ये impurity भी दो तरीके की होती है. The first is soluble impurities while the second is insoluble impurities. Soluble means जो घुला हो and insoluble जो ना घुला हो. So let's study about them one by one. The impurities that dissolve in water are called soluble impurities. It means ऐसी impurities जो वाटर को गंदा तो करती है लेकिन साथ ही साथ वो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है. और ये वाटर हमारे लिए डेफिनेटली बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड के हार्मफुल साल्ट्स घुले हो सकते हैं और मड भी. एंड द सेकेंड इज इनसॉल्युबल impurities. दिस इज द impurities that do not dissolve in water. ये ऐसी impurities है जो वाटर को गंदा तो करती है लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होती. Some examples of insoluble impurities are sand, small pebbles, and the remains of dead plants and animals. Now we will study about the activity number 3. This activity is based
to identify soluble and insoluble impurities. So for performing this activity, we will require a jug of water, 6 glasses, a strainer, a spoon, a plate, different substances like salt, sand, mud, small pebbles and some small twigs. एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट में हमें ढेर सारा पानी चाहिए, 6 ग्लासेस चाहिए और डिफरेंट 5 तरीके की ऐसी चीजें चाहिए जो पानी में हम घोल करके चेक करेंगे कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो इसके प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम 5 ग्लासेस में पानी को फिल कर लेते हैं। मीन्स डिफरेंट 5 ग्लासेस में हम वाटर को फिल कर लेते हैं और एक ग्लास को एम्प्टी रखते हैं। अब हमने जो 5 डिफरेंट सब्सटेंसेस लिया है उसमें से 1 करके सारी ग्लासेस में ऐड करते हैं। मीन्स फर्स्ट ग्लास में हम सॉल्ट ऐड करते हैं, सेकेंड ग्लास में हम सैंड, थर्ड में मड, फोर्थ में स्मॉल पेबल्स और फिफ्थ में छोटी छोटी ट्विक्स को। अब हम चाहें तो इसे अच्छे से स्टाइल में हिला हिलाकर घोल सकते हैं। यू कैन यूज दिस स्पून आल्सो। नाउ वी विल नीड अ स्ट्रेनर, मीन्स हमें एक छन्नी चाहिए, जैसे चाय की छन्नी। वी विल प्लेस दिस स्ट्रेनर ओवर द 6th empty ग्लास। जो हमने एक ग्लास खाली रखा था उस पर हम वो छन्नी लगाते हैं और पहली ग्लास को उठा करके, मीन्स जिसमें हमने साल्ट को डिसॉल्व किया था, उस ग्लास को उठा के उसके पानी को इस पे उड़ेल देते हैं। और अगर स्ट्रेनर के ऊपर कुछ बचता है तो उसे एक प्लेट में उड़ेल देते हैं। बारी बारी से इसी तरीके से 5 डिफरेंट ग्लासेस के जो भी वाटर हैं उसको हम 1 बाय 1 करके हर बार उस ग्लास में उड़ेलते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सी ग्लास में वाटर में वो चीज घुल गई और कौन सी ग्लास में नहीं डिसॉल्व हुई। सो आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन वी विल कम टू नो कि सैंड, पीबल्स और ट्विक्स, इट मीन्स बालू, कंकर और छोटे छोटे ट्विक्स, ये ऐसी इम्प्यूरिटीज थी जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई और ये उस स्ट्रेनर के ऊपर कलेक्ट हो गई। इसके अलावा साल्ट, मड, ये ऐसी चीजें थी जो वाटर में डिसॉल्व हो गई। सो थ्रू दिस एक्टिविटी वी केम ऑन द कंक्लूजन that substances like salt and mud are soluble impurities as they dissolve in water. Substances like sand, pebbles, and twigs are insoluble impurities as they do not dissolve in water. So children, when we are studying about the impurities, so definitely we will know how to purify the water. क्योंकि हम गंदा पानी तो पिएंगे नहीं. So there are many processes of purification of water. So let's start. Drinking impure water may cause many diseases like cholera, typhoid and dysentery. Children, अगर हम impure water पीते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. Thus it is necessary to purify water. इसीलिए जरूरी है कि हम जिस वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं वो वाटर प्योर हो। The water that is fit for drinking is called the potable water. It means जो पानी पीने के लायक हो, हमारे हेल्थ के लिए फिट हो, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। To make water fit for drinking, it is necessary to remove the soluble and insoluble impurities. तो वाटर कैसे हम पीने के लायक बनाएं? इट इज मस्ट कि उस वाटर में जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं उसको हम रिमूव कर दें। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड जर्म्स फ्रॉम द वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग is called purification of water. There are many ways to purify water. So first method is filtration. The impurities can be removed by using various kinds of filters that strains the impurities. Children, most of the houses are having the water filter these days. अधिकतर घरों में आजकल वाटर फिल्टर लगा होता है जो कि वाटर को फिल्टर करता है और हमें वो पोर्टेबल बना करके देता है, मीन्स पीने लायक वो पानी बना देता है। बट समटाइम देयर आर द ड्रॉबैक ऑफ फिल्ट्रेशन आल्सो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में वाटर के अंदर जो हमारे लिए ज़रूरी साल्ट हैं
वो भी फिल्टर हो जाते हैं। Even after the soluble and insoluble impurities are removed, the water may still not be potable. बहुत बार ऐसा होता है कि soluble और insoluble impurities को रिमूव करने के बाद भी वाटर पीने के लायक नहीं होता क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं एंड जर्म्स causes diseases. सो ये बहुत ज़रूरी है कि वाटर को प्रॉपरली प्यूरिफाई किया जाए ताकि उसमें प्रेजेंट सारे जर्म्स मर जाएं. So the first process for removing the germ is boiling. Boiling means ubalna. The simplest way to purify drinking water is boiling it. ये एक सबसे सिंपल प्रोसेस है वाटर को प्यूरिफाई करने का. It is necessary to boil the water for about 10 minutes to kill most of the germs and make the water potable. तो अगर आप घर में ही चाहते हैं कि कहीं बिना कोई मशीन लगवाए या कहीं कोई मार्केट से वाटर परचेस करने के बजाय आप घर पे चाहते हो कि वाटर प्योर हो जाए, तो कम से कम उस वाटर को 10 मिनट्स तक बॉयल करना चाहिए. ऐसा करने से उसके मैक्सिमम जर्म्स मर जाते हैं. सेकेंड इज क्लोरीनेशन. Adding chlorine tablets to drinking water is called chlorination. Chlorination means adding chlorine tablets. मार्केट में क्लोरीन की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं. When we will add chlorine tablets to drinking water, it will kill most of the germs that causes diseases like cholera and jaundice. It means अगर पीने के पानी में क्लोरीन की टैबलेट डाल दी जाए तो उससे अधिकतर जर्म्स मर जाते हैं, especially cholera or jaundice के germs. Next is household water purifiers. The water purifiers available nowadays use different technologies to remove the impurities and kill germs. एक्चुअली में अब बहुत सारे तरीके हैं जिससे वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है. After purification, it is necessary to keep the drinking water covered to protect it from the germs. अब अगर एक बार वाटर प्यूरिफाई हो भी गया तो भी अगर आप उसे स्टोर कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपरली करना चाहिए, हमेशा कवर करके रखना चाहिए, अदरवाइज अगेन उसमें जर्म्स आ जाते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि रेन के जरिए जो वाटर हमारे अर्थ पे आ रहा है, मीन्स बारिश का पानी, उसे हम किस तरीके से कलेक्ट करके सेव करें और उसका यूज करें. In spite of so much water around us, we are facing a shortage of water. हर साल इतनी सारी बारिश होती है लेकिन उसके बावजूद भी वाटर की शॉर्टेज लगी ही रहती है. What is the reason behind it? The reason is कि जो रेन का वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. The rain water also gets wasted when it runs into the drains. क्यों? क्योंकि बारिश का बहुत सारा पानी नालियों में बह जाता है. There is a need to conserve water so that we do not fall short of this important resource. क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो पोर्टेबल होता है, पीने के लायक होता है. हम उसे डायरेक्टली नहीं पी सकते लेकिन फिल्टर करके पी सकते हैं. और होता क्या है कि अधिकतर वाटर नालियों में बह करके बर्बाद हो जाता है. वन मेथड टू कंजर्व वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो वो कोई भी तरीका जिससे हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं, मीन्स बचा करके रखते हैं, इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. मीन्स इट इज अ मेथड टू कलेक्ट एंड स्टोरिंग रेन वाटर. दिस स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज्ड लेटर इन द ड्राई सीजन. अब अगर हमने वाटर को कलेक्ट करके रख लिया है तो हम इस वाटर का यूज तब कर सकते हैं जब ड्राई सीजन हो, मीन्स जब हमें पानी की अवेलेबिलिटी ना होती हो, या फिर अगर हम उस वाटर का ही यूज ज्यादा करें, मीन्स रेन वाटर को अगर हमने कलेक्ट कर लिया और उस रेन वाटर को ही हम यूज कर रहे हैं तो दूसरे सोर्सेस के पास हम कम जाएंगे, सो दैट विल बी सेव्ड फॉर अदर्स. In this method, rainwater is not allowed to run into drains and go waste. एक्चुअली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग में रेन वाटर को हम नालियों में नहीं बहने देते हैं और उसको बर्बाद नहीं होने देते. इंस्टेड द वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स. और हम इस वाटर को टैंक्स में इकट्ठा करते हैं. द रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन डिफरेंट वेज. अब इस रेन वाटर को इकट्ठा करने के कई तरीके हैं.
Here, three are given. The first is in rooftops rainwater harvesting. The water is collected on rooftops and stored in the rainwater tank. अब अगर हम चाहते हैं कि बरसात का पानी हम संभाल करके इकट्ठा करें, तो हम उस पानी को किसी टैंक में कलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड, रेन वाटर इज आल्सो कलेक्टेड बाय मेकिंग चेक डैम्स. इसके अलावा डैम्स में भी वाटर को इकट्ठा किया जा सकता है. इट मीन्स बरसात का पानी डैम्स में भी कलेक्ट कर सकते हैं. एट ए स्मॉलर स्केल लार्ज टब्स एंड कंटेनर्स कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट रेन वाटर. और सबसे छोटे स्केल पे हम अगर चाहें तो बारिश के पानी को हम टब में या किसी छोटे कंटेनर में भी इकट्ठा करके यूज में ला सकते हैं. सी द पिक्चर फर्स्ट. इस पिक्चर में जो रेन वाटर छत पर से नीचे की तरफ आ रहा है वो एक कंटेनर में पाइप के जरिए कलेक्ट हो रहा है. दैट इज द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. There is an urgent need today to make people aware of the need to conserve water as life is not possible without water. एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम में हर कंट्री के हर पर्सन को ये सोचना चाहिए कि वाटर हमें जिंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी है. और अगर इसकी कमी लगातार इसी तरीके से हुई, मीन्स पोर्टेबल वाटर हमें अवेलेबल नहीं हुआ, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होगी. सो इसको ध्यान में रखते हुए हर किसी को वाटर को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए, और स्पेशली रेन वाटर को, क्योंकि दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व the water. Now we will study about some interesting facts. In India, भारत में तमिलनाडु is the first state to make rainwater harvesting compulsory in all the buildings. आपको पता है तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहां पर हर किसी को अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना जरूरी है. मीन्स उनको वहां ऐसा सेटअप लगवाना ही पड़ता है कि वो रेन वाटर को इकट्ठा करें किसी टैंक में. The scheme has helped people in water-starved regions such as Chennai by raising water tables. अब आप इमेजिन करो कि अगर हर कोई इस तरीके से वाटर को कलेक्ट करे तो उससे क्या फायदा होगा. हैंड पंप से या ट्यूबवेल से जो वाटर हम लोग निकालते हैं वो वाटर सेफ रहेगा और उस एरिया के लोग उसे ज़्यादा यूज कर पाएंगे जहाँ पर बरसात नहीं होती है. जैसे चेन्नई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बरसात कम होती है, तो अगर वहाँ के लोगों के लिए अंडरग्राउंड वाटर सेफ रहेगा, सो इट विल बी बेटर फॉर देम. So children, I am hoping that in the coming next rainy season, you all would like to conserve the rainwater. So it was all about the chapter number 9. Thank you children.